Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I'm sure I'm audible and the screen is there. In a moment, I will proceed further towards the screen. This do confirm in the chat box that the screen is visible so that I may proceed further. So I'm waiting for your response. You are just supposed to mention that the screen is visible or not. If it is, okay, we have a message. Not visible. Okay. So it's not visible, Imran. Is visible now? Not visible. Okay. Okay. Thank you so much for introducing the short form. It's visible. Talking about some previous questions, in total we have 10 questions today that we are going to discuss, and I have written down all the questions for your convenience so that we can easily discuss them one by one. Today we will discuss those questions that have been the part of previous interviews. So here we go with the questions, and in a moment the questions will be there. Okay, so I'm sure the questions are visible. Okay, ji, the first question is, what is the difference between ballot and ballot? A very important question. Instead, this question been a part of a lot many interviews in KPPSC. So the students of PPSC, I'm sure that they know the difference between the ballot and the ballot. So आपको पता होना चाहिए कि when you're talking about the ballot, the ballot is the only thing जो कि आपके पास फॉक ओरिजिन लगता है. फॉक ओरिजिन क्या होता है कि जिसमें आपके पास वो चीजें मूव ऑन करती हैं, सीने दर सीना चलती हैं, जिसमें ओरिजिन जो होता है वो आपका कोई ऐसे लगा बंधा नहीं होता, तो जिसकी बेसिस पे आप कह सकते हैं कि ये एक साइंटिफिक वे है, ये एक साइंटिफिक प्रोसीजर है. बाय द वे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द बैलेट? बैलेट जो है वो क्या है, आप क्या समझते हैं? व्हाट इज द बैलेट? What is the definition of the ballot? That is a question. The point that tells a story. Okay, you need to understand that whenever you're talking about ballot और जब आप इस specific question का answer करोगे, आपको पता होना चाहिए कि ballot जो है इसका origin क्या है. So you will start your story right from the word ballot. You will talk about the difference between ballot and ballot. The word ballot, you know, ये बैलेट जो है वो लिया ही गया जो है वो बैलेट से है, और बैलेट का मतलब है टू डांस. ओके, सो जब आप जो है वो मूव ऑन करते हैं, जब आप गहराई में चले जाते हैं, व्हेन यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द बैलेट एंड डांसिंग, दैट मींस द बैलेट और बैलेट का जो डिफरेंस है वो क्लियर होता है. सो बैलेट वर्ड जो है उसका ओरिजिन है बैलेट, और बैलेट से लिया गया, और बैलेट का मतलब है व्हेन यू आर गोइंग फॉर द डांस, व्हेन समवन इज डांसिंग. हमारे पंजाबी के अंदर भी ये कल्चर था, एग्जिस्ट करता था और अभी भी करता है, तो जो हमारे पंजाब का कल्चर होता था वहां पे फोकलोर जो है वो होते हैं, वो सॉन्ग्स जो है वो गाए जाते थे. सो
इसमें डिफरेंस को बताते हुए आप ना सिर्फ डिफरेंस की बातें करेंगे, बट आप ऑथरशिप की भी बातें करेंगे कि बैलेट जब जो है लिया जाता था, लिखा जाता था, ये सोफिस्टिकेटेड टर्म्स जो है वो कैसे बनी, किस तरह से मुमकिन था कि बैलेट जो है वो रिचुअल डांसिंग से होता हुआ एक हमारे पास लिटरेचर के अंदर आ जाता है, और उसके बाद लिटरेचर के अंदर आने के बाद इसकी पोजीशन क्या रहती है। ठीक है, आप कुछ मशहूर जो है वो बैलेट्स उनकी बातें करेंगे, आप इसके अलावा जो है वो कोशिश करेंगे कि आप इसके स्टाइल के ऊपर बात कर सकें कि बैलेट जो होता है एक नैरेटिव फॉर्म में होता है, एक पर्टिकुलर वे में बताया जाता है। बैलेट जो है वो ये एक सिंगल एपिसोड को कवर करता है। सो इन दिस वे you're going to talk about the difference between ballad and ballad. So definitely it is not possible to rule out the very characteristics of the ballad while you are talking about ballad. So in my point of view, you need to discuss the style of ancient ballad. While when you will define ballad, you need to understand that there is a difference between modern ballads and the ancient ballads. Modern ballads mean like when you are writing something that you are not bound, you are not down to the earth. But when you are talking about the ancient ballads, that means you are free from literary ornament. You can write what you want to write. You can write whatever you want to write, and the attitude does not matter. Okay, so ancient ballads means the ballads without any rules and regulations. So you're supposed to mention the difference between the ancient ballads and the latest ballads. Okay, so the important thing is that when you will dig up some details, you will come to know the name of Sir Philip Sidney. Sir Philip Sidney was the only person जिसने बैलेट पे खासी तवज्जो दी और इसके ऊपर काफी काम किया. So I'm sure that you got the answer, that how you're going to understand and how you're going to define the very term, the very difference between ballad and ballad. Well, the next question is once again related to the themes of the ballad. So, in 15th century, there were a lot many ballads. So, what are the themes of the ballads in 15th century? Remember one thing: you can detach yourself from the life. Okay, Hania, when we say ballad, ballad is the word that has given us ballad actually. And ballad means to dance. Okay, so when you're talking about ballad, you need to define okay, no need to worry about. Let me define it again. Ballad is when you are talking about ancient ballads, where you're not supposed to follow any rule and regulations. You can write, you can dance, you can write whatever you want to write. You can go on without any attitude. You can go on in boho mood. You can write in without any literary ornament. But that is the ballad actually. Clear? Clear? And ballad is the opposite of ballad. Though the word ballad has been taken from the ballad, but ballad is something that is having ornamentation, that is having a particular attitude, that is having, a magnificent way as compared to the ballad. So here we have tone and tenor. Here we have proper way of communication. In ballad, everything is rustic, everything is close to the nature. Remember, in our villages, even the people they're singing songs and they're enjoying their life. So when any person is moving without rules and regulation, he's producing valor. Did you get the difference? In villages, even the people they sing the folklore, the stories. So when something is without rules and regulation, that is valor. When they are dancing, when they're singing something, they are not following any tune and tenor. They are not following any attitude. Is it clear? My question to Aruba. Aruba, is it clear? Did you get it? Because you have mentioned that you didn't get it. Okay. Well, the second thing is about the themes of the ballad. Remember one thing. When you're talking about the themes, before understanding and discussing themes, it is important and pertinent to discuss that themes are not detached to the life. Whatever life is, you're going to talk about those things. And here, once again, the center of ballad was the human life. The center of ballad was the emotions, and those emotions were intense emotions. But
Ballad, as I mentioned earlier, was a sophisticated form. Ballad was not a sophisticated form. So in ballads, you can easily find out the elements of love, the elements of lust, the elements of hate, jealousy, etc., etc. So पुराने जमाने के अंदर when you were talking about the ancient ballads, तब क्या होता था? क्रिश्चियंस होते थे, क्रिश्चियंस क्या होता है, वो अपने कल्चर की बात करते हैं। कोई भी बैलेट जो होता है वो ऐसा मुमकिन नहीं है कि उसमें से आप उसके कल्चर को अलग कर दो। तो कल्चर इंपॉर्टेंट होता है। सो कल्चर में हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट होता है? कल्चर में जो मजहब था, जब क्रिश्चियनिटी की बात कर रहे हो तो वो बिब्लिकल थीम्स की बात करेगा, और बिब्लिकल थीम्स की बात ये है कि वो सुपरनेचुरल चीजों की बात करेगा। तो पुराने जमाने में जो थीम होता था, और जो 15th सेंचुरी के अंदर भी थीम आया, वो हमारे पास इविल स्पिरिट्स का थीम था, वो हमारे पास मरमेड्स का थीम था, वो हमारे पास डेविल्स का थीम था। ठीक है, and that is the reason whenever we talk about the demon lover, जो कि एक बड़ा मशहूर जो बैलेट है, the demon lover, so we have the account of the beautiful woman। इसके अंदर हमारे पास वही एलिमेंट है, खूबसूरत खातून है, वो धोखा देती है, और धोखा कौन उसको देता है? एक इविल स्पिरिट जो है वो उसको धोखा देती है। और वो इविल स्पिरिट कौन सा होता है? जो कि उसके पास एक खूबसूरत इंसान की शक्ल में आता है। तो मैं यहाँ पे ये पॉइंट ये बताना चाहता हूँ कि जब बैलेट्स की आप बात करते हो या थीम्स की बात करते चल रहा होता है, वही थीम्स जो हैं वो उस दौर के बैलेट या शायरी या लिटरेचर का हिस्सा होते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास जो है, जब हम जेम्स हैरिस को पढ़ते हैं या हम और इस एज के जो बैलेट्स को देखते हैं, वही काम सुनो कि अच्छा यार, इसके जो थीम्स हैं वो लव, लस्ट, हेट और जेलसी हैं, इनके अलावा कोई थीम नहीं। ओके, आई एम श्योर आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चंस के मैं पॉसिबल आंसर्स शेयर कर रहा हूँ कि आप इनके ये वाले आंसर्स दे सकते हो। ठीक है, जो मेरे ख्याल के अंदर इनके जो है वो जस्टिफाइड आंसर्स हो सकते हैं। आप गो ऑन कर सकते हैं, डिटेल्स को आप और भी अच्छे से देखने की कोशिश कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन, इफ यू वांट टू गो फॉर द इन एक्सप्लोरेशन, यू मे गो फॉर दैट। ठीक है जी, आप उसको भी जो है वो देख सकते हैं। अच्छा जी, अब हम जो है कुछ और समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है जी, हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 29। अब मुझे कुछ सेकंड्स दीजिएगा। I just need to take a sip of water. So, you may answer your question simply by yes or no. Okay, तो हम जो है वो मूव ऑन कहते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। Yes, yes, it is true. Thank you so much. अच्छा जी, इसका जो पॉसिबल आंसर हो सकता है द इन्फ्लुएंस ऑफ रेनेसांस, तो हम जो है वो ये समझने की जरूरत है कि इंग्लैंड की प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन उसका बैकग्राउंड क्या है। देखिए, ये सच है कि रेनेसांस को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट इट इज इम्पॉसिबल कि आप रेनेसांस को डिफाइन कर सकें। तो रेनेसांस को डिफाइन करने के लिए जरूरी है आपको कि आप कुछ चीजों को समझ सकते हैं, आप कुछ चीजों को समझ सकें, आप उन चीजों को देख सकें कि रेनेसांस जो है वो आपके पास किन किन प्रोडक्ट्स का नाम है। रेनेसांस इज समथिंग कि जब आप जो है किसी चीज को लेते हो, उसको देखते हो, रिवाइवल की बात करते हो, रिबर्थ की बात करते हो, ये बातें तो सारी ठीक है, बट हमारा क्वेश्चन ये है कि इंग्लैंड के प्रोडक्ट नहीं। हमारे पास इंग्लैंड में ये समझ लीजिएगा कि व्हेन एवर यू टॉक अबाउट इंग्लैंड, कोई ऐसी मूवमेंट नहीं थी कि जो इंग्लैंड के अंदर पैदा हुई हो और यहीं पे उसने परवान चढ़ी हो। हमारे पास वो तमाम की तमाम मूवमेंट्स जो कि यहाँ पे नहीं थी, वो हमारे पास जो है वो परवान चढ़ती हैं, कहीं और से वो पैदा होती हैं और इंग्लैंड में आके वो परवान चढ़ती हैं। सो रेनासांस हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है इंग्लैंड की, ये तो हमें यहाँ पे क्लियर है। बट हमें ये भी समझना ये जरूरी है कि इसने मिडिवल एजेस के अंदर, आप जानते हैं कि रेनेसांस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम केम टू इटली, और उसके बाद जो है वो फ्रांस में चला गया,
फ्रांस से जो है वो किस तरह से इंग्लैंड की तरफ आया, फिर 16th सेंचुरी में किस तरह से मूव ऑन हुआ. Though it is next to impossible that you are going to pinpoint the exact date of the Renaissance, but you need to mention that in Italy, the impact of Greco-Roman was there on Renaissance, and that is the reason that जब टर्किश जो है वो कंक्वेस्ट होता है वो कॉन्स्टेंटिनोपल का, और ग्रीक जो है वो स्कॉलर्स वहां से भागते हैं इटली के अंदर जो है, पर इटली में वहां से जो है वो ग्रीको रोमन का लिटरेचर लेके भागते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि रेनेसांस की प्रोडक्ट्स एक्चुअली थी क्या. Though it was not the product of England, it was a product it was a product of Greek Roman, it was a product of Italy, but still the literature there was there. ये इंग्लैंड की ही प्रोडक्ट है कि जो अदब के अंदर हम तब्दीलियां देखते हैं. In fact, we can say that literature fired the soul and imagination of the Italy of that time. So England was the only country that actually enjoyed the fruits of Renaissance. रेनासांस अगर एक ऐसी रोशनी थी जिसको हम कहें कि वो सही मानों में उसने अपनी शुआएं देना शुरू की, सही मानों में लोगों को मुनव्वर करना शुरू किया, and that was कि वो इंग्लैंड में आके ही मुमकिन हुआ. So and that is the reason it is next to impossible. We are unable to define Renaissance. हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, और जब हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं it means कि इसकी implications जो है वो ब्रॉड है. implications ब्रॉड है. हम इसको जो है वो जब implications ब्रॉड है तो हमें ये समझने की जरूरत है कि रेनासांस के 3 मतलब निकलते हैं. इसके प्रोडक्ट के बाद जो है हमें इनके मीनिंग्स पर बात करनी होगी, एंड यू नीड टू डिफाइन द फर्स्ट मीनिंग ऑफ रेनासांस इज जो मिडिवल स्कॉलर्स थे उनके नॉलेज की, उनके इल्म के लिए रेनासांस एक डेथ की सूरत में आया. ठीक है, जो इससे पहले हम ये जानते हैं कि सिर्फ ड्रामे के अंदर जो है या लिटरेचर के अंदर जो है पोएट्री के अंदर जो है क्रिश्चियनिटी का एक टच जो है वो मौजूद होता था. रेनेसांस ने इसको खत्म किया, स्पिरिचुअल अथॉरिटी को लेके आया. सो यस, ये सारी की सारी चीजें जो है वो हमारे पास इंग्लैंड के अंदर आके होती हैं. The question number 30 is Renaissance was not producing poetry, yet prose was there. What do you know about the prose of this? It's a very important question. I'm sure that when you will explore the details of Renaissance, you are not going to miss this particular question. Well, you need to understand the most important prose writers of this stage. In Renaissance, definitely you have Erasmus. That is the name, a very important name. Do not ignore this name, Erasmus. The second important name is Sir Thomas More, John Lilly, and Sidney. So these four names are very important. I am writing these names here ताकि आप इनको जो है वो देखें. Erasmus is the first person. So Thomas More is the second person, and the third person that you are supposed to explore is John Lilly. And the last one is, so important we have, famous we have, that is Philip Sidney. So you need to explore the details of these four people: Erasmus, Sir Thomas More, John Lilly, and Sidney. Remember one thing, कि जब आप इनकी बात करोगे, you need to understand that they were learning a lot many things from the Romans. Okay, so हमारे पास इनके कामों को समझेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि प्रोज के अंदर क्या क्या काम हो रहा था. ठीक है, प्रोज के अंदर जो है वो क्या क्या काम हो रहा था, एंड आपको ज्यादा स्पेस मिल जाएगी. यू कैन मेंशन हियर थॉमस मूर्स यूटोपिया आप मेंशन कर सकते हैं, जो कि आपको पता है कि जिसको कहा जाता है. एक और क्वेश्चन अच्छा पूछा जाता है थॉमस मूर के हवाले से कि थॉमस मूर को यूटोपिया को डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ये पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रू प्रोलॉग ऑफ द रेनेसांस, और ट्रू प्रोलॉग टू द रेनेसांस. So इससे क्या मतलब है कि when you're talking about the true prologue of the Renaissance or to the Renaissance, that means कि आपने जब भी true prologue की बात की तो true prologue के अंदर आपने वो तमाम चीजें जो है वो डिस्कस की, उन तमाम चीजों को बताने की कोशिश की कि अच्छा जी ये वो सारी की सारी चीजें हैं कि जो हमारे पास रेनासांस को रेनासांस बनाती हैं. अगर आप रेनासांस को रेनासांस बनाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, then you need to understand कि आपको इन तमाम चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा. So ये हमारे पास जो है वो सारी की सारी फॉर्म्स हैं, सारी की सारी वर्किंग है, सारी की सारी चीजें हैं जिनको आपको इस क्वेश्चन के आंसर के लिए समझना पड़ेगा.
The next particular question is, why is Sir Thomas More and Earl of Surrey considered the pioneers of poetry in England? अच्छा, इसमें ना मेरी वजह से आपको एक suggestion है. While you will prepare question number 30, my suggestion is, you are not supposed to ignore the background of this utopia. Utopia was the first book, by the way, that was written by an Englishman, and you know, Utopia achieved world-class fame. It was written in Latin in 1516. Okay, and later on, the translation version came into being in 1555. That was translated into English. And the reason was curiosity. The people were curious enough that they were talking about कि यार ये क्या चीज है. आप जानते हो कि बेकन ने जब लिखना शुरू किया था, बेकन नोवम ऑर्गेनम जो है वो भी लैटिन के अंदर था. और यूटोपिया लफ्ज ही ग्रीक से आया. एक यूटोपिया वर्ड का मीनिंग क्या है, क्या समझ में आता है कि यूटोपिया से जो है वो क्या समझ में आता है, और ये वर्ड जो है वो यही क्यों टाइटल लिया गया. ओके, सो ये आपको जो है वो सारी की सारी चीजें समझने की जरूरत है. अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? समझ आ रहा है आपको जो चीजें आप हम अभी देख रहे हैं? इज इट क्लियर? ओके, गुड. टॉकिंग अबाउट the next point, talking about the next question, why is Sir Thomas More and Earl of Surrey are considered the pioneers of poetry in England? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. टाइम एंड अगेन इस पर बात होती है, टाइम एंड अगेन पूछा जाता है, टाइम एंड अगेन डिस्कस किया जाता है. एक चीज याद रखिएगा, थॉमस मूर को, मेरी एक आदत है, एक छोटी सी आदत है, जब भी मैं बात करूंगा, whenever I will mention any name in the interview, I will definitely go for the details, like Sir Thomas More, born in 1503, died in 1542. Earl of Surrey, born in 1517, died in 1547. आप जब भी कोई नाम देखो, उसकी डिटेल्स को थोड़ा सा देख लिया करो. What are the relevance? What are the differences between them, and how things move on? और अगर आप टॉमस मूर और अर्ल ऑफ सरे को देखोगे ना, तो दे वर्क लाइक ए कंपनी. दे वर वर्किंग इन दिस वे दैट it sound that they were working like a company. And the company means कि चौसठ के बाद हमारे पास शायद इंग्लिश में उस तरह से कोई काम हो नहीं सका, अपवर्ड मोबिलिटी आ नहीं सकी जिस तरह से इन दोनों ने काम किया. अगर आप इसमें देखो कि 15th सेंचुरी के अंदर जो है, ये कंफ्यूजन वाली सेंचुरी थी. क्यों कंफ्यूजन वाली सेंचुरी थी? इसी एज के अंदर हमारे पास जो है वो जॉन लिडगेट लिखता है. मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कल कि आप जो है वो लिडगेट और स्केल्टन को देखिएगा. कोई मुझे बता सकता है ये कौन थे? जॉन लिडगेट जो है ये कौन थे, और स्केल्टन कौन थे? तो मुझे बता सकता है ये दोनों कौन थे? जॉन लिडगेट कौन थे और स्केल्टन कौन थे? ये कौन थे जी? जॉन लिडगेट और स्केल्टन कौन थे? जी, बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, अरूज हैं. अच्छा, अरूज का एक आंसर आया, अरूबा का एक आंसर आया. हाँ, कौन से थे? ब्रिटिश थे, स्कॉटिश थे, कौन से वाले थे? हाँ, इसको दोबारा भी देख लीजिएगा एक दफा. अच्छा, ये लोग जो काम कर रहे थे ना, ऐसा लगता था कि ये सिर्फ मोकरी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये कुछ अच्छा नहीं लिख रहा है. इंग्लिश में कुछ ऐसा काम था कि अगर इंग्लिश को हम ये समझें कि एक गाड़ी की तरह थी, तो वो एक जगह पे जैम हो चुके थे. थॉमस मूर और अर्ल ऑफ सरे को इसलिए भी पॉइंटर समझा जाता है कि इन्होंने उस गाड़ी को जो एक जगह पे जमी हुई थी उसको मूव ऑन किया. इंग्लिश पोइट्री, इंग्लिश जो हमारे पास लिटरेचर था, हम ये जानते हैं कि 1557 के बाद तो उसके जब क्वीन एलिजाबेथ की कोरोनेशन सेरेमनी होती है, तो तब तो जो काम है वो बहुत ज्यादा होता है. बट उससे पहले ये मुमकिन नहीं था कि इतना काम किया जा सके.
So my recommendation is कि when you will prepare this question, आपको थॉमस विट के क्रेडिट की बात करनी होगी कि थॉमस विट एंड सरे, they were the first people who introduced sonnets into English literature. They were the first people जिन्होंने फर्स्ट जो है वो ब्लैंक वर्स के अंदर लिखा था, और ब्लैंक वर्स वो बाद में चीज थी जिसको बाद में बहुत से लोगों ने रोल मॉडल बना दिया था। ठीक है, जैसा कि डेविड डिशेस ने लिखा था कि थॉमस विट्स के जो सॉनेट्स हैं वो इंटरेस्टिंग मूवमेंट्स की बात करते हैं, वो डिसिप्लिन की बात करते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स अबाउट दीस टू। अच्छा जी, आप इसमें एक और भी चीज बात कर सकते हैं। आप इसमें सोनेट्स की जब बात करोगे तो आप ये भी बताओगे, राइमिंग स्कीम्स को भी मेंशन कर सकते हैं कि हाउ द थिंग्स मूव ऑन। और यहाँ पे मैं वंस अगेन एक चौसरियन की बात करूंगा, गोविन डॉगलिस की। मैंने कल भी ये नाम मेंशन किया था और आपसे रिक्वेस्ट की थी कि इस नेम को देख लीजिएगा। ये काफी इंटरव्यूज के अंदर जो है वो पूछा जा चुका है। आई डोंट नो कि आपने इसको देखा या नहीं देखा, बट अगर नहीं देखा तो इसको जरूर देख लीजिएगा। अच्छा जी, टुडेज ड्रामा इज अ अपग्रेडेड फॉर्म ऑफ लिटर्जिकल प्लेज, इज इट सो? अच्छा सिंपल सा बताइए, यस या नो, ये 32 वाले क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है कि आज का ड्रामा वाकई जो है वो अपग्रेडेड फॉर्म है लिटर्जिकल प्लेज का? लेट्स सी। अच्छा देखो, सबसे पहले जो है जब हम बात करते हैं ना ड्रामा के हवाले से, आपका आंसर मुझे नहीं मिल सका। अब नहीं जानते हैं मोहम्मद इमरान साहब ये क्या होते हैं, लिटर्जिकल प्लेस कौन से होते हैं? और कितने लोगों को नहीं पता कि ये प्लेस कौन से होते हैं? कितने लोगों को ये नहीं पता? अरूज को नहीं पता? अच्छा, ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू डिफाइन इट, मैं देखना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा देखो, समझने की कोशिश करो। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको जो है वो। जब ड्रामा रिवाइवल होता है ना, ड्रामा जब जब वजूद में आता है, उससे पहले हमारे पास जो है ड्रामा की एक ही फॉर्म एग्जिस्ट करती थी और वो लिटर्जिकल प्लेस है। अब ये क्या होता था, इसके अंदर हमारे पास क्या होता था, मेडिकल एंड मिस्ट्री की बात की जाती थी, इसके अंदर मोरालिटीज की बात की जाती थी। ठीक है, इन तमाम के तमाम प्लेस में जिसके अंदर हमारे पास जो है वो इन्हीं जॉनरास की बात की जाती है, इनको हम लिटरेचरल प्लेस की कैटेगरी के अंदर लेके आते हैं। लेकिन ड्रामा जो है इट्स नॉट इजी कि इसकी अपवर्ड मूवमेंट को एक सिंगल लाइन के अंदर हम बता सकें। सो हमें ये भी समझने की जरूरत है कि ये जो लिटर्जिकल प्लेस थे बेसिकली इसके अंदर होता क्या था। देखो, लिटर्जिकल प्लेस जो है, एक चीज तो समझ लो कि ये होते ही मिडिल एजेस के अंदर थे। दूसरी चीज ये भी समझ लो कि इनको ये चूंकि ये प्ले हैं, डेफिनेटली इनको परफॉर्म किया जाता था, इनके अंदर एक्ट दिया जाता था। और ये एक्ट सारे के सारे जो हैं वो या तो चर्च के अंदर होते थे या चर्च के करीब होते थे। और चूंकि ये चर्च के अंदर ये करीब होते तो लिहाजा स्टोरीज भी या तो बाइबल की होती थी या सेंट्स की होती थी। यानी या तो मिस्ट्री प्लेस होंगे या मोरलिटी प्लेस होंगे। लोग जो हैं वो इन्हीं चीजों को देखते थे। ये असल में क्रिश्चियन लिटर्जी के मतलब है कि ऐसे प्लेस जिसको जो है वो चर्च की अच्छी खासी पैटर्नेज हासिल होती थी, उसको हम जो है लिटर्जिकल प्लेस कहते हैं। तो इज इट क्लियर? क्या मैंने आंसर किया आपके क्वेश्चन को? सो यहाँ पे हमें समझने की जरूरत है कि एंशियंट क्लासिकल लर्निंग में हमारे पास सिर्फ दो तरह की चीजें होती हैं। अब इस एज में हमारे पास एक नाम आता है जो मैं ये समझता हूँ कि आपको जरूर देखने की जरूरत है व्हेन वी विल टॉक अबाउट द लिटर्जिकल प्लेस। यहाँ पे आप जो है वो एक नाम देखेंगे, वो आपके पास जॉन हेवुड का नाम है। अच्छा, जॉन हेवुड के नेम को जब आप डिटेल से देखने की कोशिश करोगे, जॉन हेवुड ने जो आपके पास लिखे इंटरल्यूड लिखे, उसने जितनी भी चीजें लिखी वो सारी की सारी ऐसी ही थी। फिर आप देख लीजिएगा, बाद में हमें पता चलता है कि ड्रामेटिक वर्क के ऊपर यूनिवर्सिटी विट्स ने भी काम किया था और उन्होंने भी जो चीजें प्रोड्यूस की थी वो भी ऐसी थी कि जिनमें हम ये कह सकते हैं कि हमें इसलिए कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी विट्स जो मार्लो भी था, मार्लो के बारे में भी कहा जाता है कि दैट इज द ट्रू चाइल्ड ऑफ द रेनेसांस। सो हमारे पास जो ड्रामा है उसका ओरिजिन कैसे होता है, मजहब से होता है, फिर कैसे मूव ऑन करता है, फिर हमारे पास कैसे
जो है वो गोबरडक आती है, कैसे रॉल्फ रोइस्टर डूइस्टर आता है, उसके अंदर जो है वो किस तरह से सोफोक्लीज और यूरिपिडीज का किरदार है, सेनेकन ट्रेजेडीज क्या होती हैं, रोमन ड्रामा क्या होता है, यूनिवर्सिटी का क्या किरदार है, इन तमाम चीजों को आप एक्सप्लेन करोगे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या क्वेश्चन नंबर 33 is the attitude of religion and drama towards each other has been strikingly very. So, very important question कि आप जो है वो ड्रामा के बारे में किस तरह से ये समझते हैं। ये बेसिकली कोटेशन है, एटीट्यूड ऑफ रिलीजन एंड ड्रामा टुवर्ड्स ईच अदर हैज बीन स्ट्राइकिंगली वेरिड। ये डेविड डिशीज ने ये कहा हुआ, ठीक है। सो इसके अंदर है क्या बात, वो करना क्या चाहता है, वो समझाना क्या चाहता है। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। जब भी आप बात करते हो, जब भी आप समझने की कोशिश करते हो, आप ओरिजिन की बात करते हो कि एटीट्यूड्स ऑफ रिलीजन एंड ड्रामा, आप रिलेशनशिप की बात करो कि रिलीजन और ड्रामा के अंदर रिलेशनशिप है क्या, ठीक है। जैसा कि ग्रीस के अंदर होता था, बहुत सी कंट्रीज के अंदर ऐसा होता था कि चर्च जो है वो एक सेमिनल रोल प्ले करता था, एक मरकजी किरदार अदा किया करता था। सो जब चर्च जो है वो मरकजी किरदार अदा करेगा तो रिलीजन जो है वो डेफिनेटली इफेक्ट करेगा इसके ऊपर, ड्रामा के ऊपर। सो अब हम जो है वो ये नहीं कह सकते कि अगर आप जो है वो चर्च को निकाल देंगे तो फिर जो लिटरेचर होगा वो सोसाइटी की रिप्रेजेंटेशन होगा। लेकिन इंग्लैंड के अंदर भी चर्च बिगनिंग के अंदर जो है वो हॉस्टल रहा था ड्रामा का, उसने ड्रामा को सपोर्ट नहीं किया था। सो ये जो इसका एग्जैक्ट लाइन शायद आप कोट करना चाहें आगाज में, हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है वो मिसाल ले लीजिए। मैं सिर्फ इस लाइन को समझाना चाह रहा हूँ, एटीट्यूड ऑफ रिलीजन एंड ड्रामा टुवर्ड्स ईच अदर हैज बीन स्ट्राइकिंगली वेल। क्या मुझे बताइए कि एक जमाना था जब आप ये सुना करते थे कि हमारे उलमा हजरात जो हैं तो टेलीविजन देखने की सख्त मुखालफत किया करते थे, डू यू नो, तो वो मुखालफत किया करते थे। ये सच है कि आज हर एक आलिम दीन का अपना यूट्यूब चैनल है, ये एक हकीकत है। लेकिन एक जमाना था जब वो मुखालफत किया करते थे। इंग्लैंड के अंदर भी ऐसा था, चर्च मुखालफत किया करता था, एक्टिवली हॉस्टल था ड्रामा का। और यही वजह है कि डार्क एजेस आप जानते हैं कि 6th सेंचुरी से 10th सेंचुरी तक को कहा जाता है कि हमारे पास ड्रामेटिक एक्टिविटी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस क्वेश्चन के आंसर में कि एटीट्यूड ऑफ रिलीजन ड्रामा टुवर्ड्स ईच अदर हैज बीन स्ट्राइकिंगली वेरिड, आप रेफरेंस दोगे डार्क एजेस का। आप ये बताओगे कि डार्क एजेस का रिकॉर्ड जो है वो इसलिए हमारे पास में से, डार्क एजेस कौन सी एजेस हैं, 6th सेंचुरी से 10th सेंचुरी तक, कि उसके अंदर ड्रामेटिक एक्टिविटी नहीं, ठीक है। और अब हमारे पास क्या है कि अब हम देखते हैं कि 9th सेंचुरी के अंदर कहीं पे जाके हमारे पास कुछ एडिशनल चीजें आती हैं, कुछ टेक्स्ट हमें मिलता है, ठीक है, जो कि ड्रामा के हवाले से है। और ये सारी की सारी चीजें जो है हमारे पास लैटिन के अंदर मौजूद है। सो हम ये बता सकते हैं कि आगाज के अंदर जो जितनी भी चीजें हैं उन्होंने ड्रामा को, लिटरेचर को, परफॉर्मेंस को अपोज किया। चर्च जो है वो सप्रेस करने में मसरूफ था ड्रामा को। मिडिल एजेस में हमारे पास ये चीज हमें पता चलती है कि चर्च खुद से उसको दबाने की कोशिश करता है। ये तो लेटर ऑन है कि चर्च जो है उसको फिर प्रमोट करता है। तो जब हमारे पास मोरालिटी प्लेज आते हैं, जब हमारे पास मेडिकल प्लेज आते हैं, ठीक है। I think I have answered the question. That is the question number 33. So let's talk about question number 34. Actually, morality plays has more direct links with Elizabethan drama. Remember one thing, when you're talking about morality plays, you need to understand all the things in different steps. The first step is morality play is a play that deals with morality, that is talking about your social life, what to do, what not to do. If you will do this, that's the right thing. If you are not going to do this, that's the wrong thing. So morality is something that is opposite to secularization. A secular literature is opposite to morality. But the next stage of morality is secularization. मोरालिटी प्लेस की एक्सटेंडेड फॉर्म जो थी वो हमारे पास जो है सबसे पहले तो वो आती है मेडिकल की फॉर्म। मोरालिटी से मेडिकल निकलते हैं, मेडिकल से मिस्ट्री प्लेस आते हैं, ठीक है।
सो हमारे पास जो है जितने भी प्लेस एलिजाबेथन एज के अंदर लिखे जाते हैं, एलिजाबेथन एज के अंदर जितने भी ड्रामास लिखे जाते हैं, हमें यहाँ पे पता चलता है कि उनका एक डायरेक्ट लिंक मौजूद है। उनका डायरेक्ट लिंक क्या है? माइरिकल और मिस्ट्री प्लेस जो हैं वो क्या करते थे, उनका रोल ये होता था कि मोरालिटी प्लेस जो है वो डील किया करते थे मॉरल लाइफ को, माइरिकल प्लेस जो है वो सेंट्स की लाइफ को डिपिक्ट किया करते थे। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, मोरालिटी और मेडिकल के अंदर जो एक लिंक था वो बहरे कैफ मौजूद था, और यही चीजें हमें बाद में नजर आती। लेकिन जब आप बात करते हो कि उनका लिंक एलिजाबेथन ड्रामा से क्या था, यहाँ पे टेक्निकल चीजें हैं। देखो, एलिजाबेथन एज के अंदर जितनी भी चीजें थी, जो कि हमारे पास लाइफ ऑफ सेंट्स नहीं है, जो कि इसके अंदर वैसे मजहब का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन एलेगोरिकल या सिंबॉलिक नेचर तो एज इट इज ही। तो इसके अंदर पर्सोनिफिकेशन और जो डिफरेंट हमारे पास डिवाइसेस हैं वो तो एज इट इज ही। ये सच है कि हमारे पास साइंस आ गई, ये सच है कि हमारे पास दूसरी चीजें आ गई, लेकिन ये सिंबलिज्म का कॉन्सेप्ट तो इन्हीं से लिया गया। ये हमारे पास जो करेक्टर्स थे, गुड करेक्टर्स थे, बैड करेक्टर थे, वर्चूज थे, वाइसेस थे, वो तो यहीं से लिया गया। सो हमें ये समझने की जरूरत है कि मोरालिटी प्लेस के राइटर्स जो हैं और एलिजाबेथन एज के जो राइटर्स हैं वो फॉलो कर रहे हैं एक दूसरे, एक ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं। एंड दैट इज द रीजन हमारे पास वाइस है, हमारे पास डेवल्स हैं, हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स हैं। सो इस तरह से आप एक लिंक को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। What do you know about the interludes of John Hayward? Is it true that he focused more and more on amusement than instructions? Oh yes. देखो, जॉन हेवर्ड की जब बात करोगे, 1497 में पैदा होते हैं, 1580 में चला जाता है। इसके इंटरल्यूड जो है, अच्छा इंटरल्यूड जो है ना, बेसिकली ट्रांजिशन की बात करते हैं, ठीक है, सिंबलिज्म टू रियलिज्म की बात करते हैं। ये इनका अगर आप वजूद की बात कर लो, इट अपीयर्ड बेसिकली एट द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी, ठीक है। लेकिन हमें जॉन हेवर्ड के ऊपर बात करनी। जॉन हेवर्ड हमारे पास एक ऐसा पर्सन है जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि उसको और उसका फोकस जो है वो अम्यूजमेंट के ऊपर था, इंस्ट्रक्शन के ऊपर नहीं था। क्योंकि अगर आप इसके लिटरेचर को पढ़ते हो, जॉन हेवर्ड के इंटरव्यूज को पढ़ने की कोशिश करते हो, यू विल कम टू नो उसका जो फोकस होता था ज्यादा से ज्यादा वो होता था लाइट सेटायर के ऊपर, जो है इम्पेशेंट वीमेन के ऊपर होता था, ठीक है। अब उसका जो है वो फोकस क्या था, इसके ऊपर जो है इसका फोकस जो होता था तो मैंने किस तरह से फरेशियल वे के अंदर, ह्यूमरस वे के अंदर विटफुली चीजों को एक्सप्लेन कर रहा था, तो रियलिस्टिकली पोर्ट्रे कर रहा था ह्यूमन बींग्स को और मैनर्स को, लेकिन एक अम्यूजमेंट वाला वे जो है वो ये इसमें अडॉप्ट कर रहा है। सो जी, स्टॉपिंग हियर, द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए, एक्सप्लेन किए, आपको क्या इनके पॉसिबल आंसर जो हैं वो समझ में आए? आपको कुछ पता चला? How you are going to move on in your actual interview? I'm sure all the questions are new for you. काफी क्वेश्चंस आपके लिए नए होंगे क्योंकि ये 2024 के, सॉरी 2022 के इंटरव्यूज में से 20 में से मोस्टली क्वेश्चंस हैं, तो आपके लिए कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो नए हैं। हाँ, अच्छा, इसमें ना हमें एक करेक्टर की वेरी न्यू, ये हमारे पास जो है वो 2022 के क्वेश्चंस हैं जो कि केपी के और हमारे जो अपने ऐसे लोग जो कि पंजाब पब्लिक सर्विस में इंटरव्यूज देते हैं लेकिन उनका सब्जेक्ट इंग्लिश होता है, तो उनसे जो उन सब्जेक्ट्स के होते हैं इंटरव्यूज जो हैं उनमें जो क्वेश्चंस है वो भी हमने विड्रॉ किए। अच्छा, इसमें जो है यू आर सपोज टू टॉक अबाउट जॉन हेवुड, आपको इसका बताना है। जॉन हेवुड बेसिकली इंटरल्यूड जो है वो लिखा करते थे, आपको ये बताने की जरूरत है कि इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है, आपको ये बताने की जरूरत है कि कैसे मुमकिन है कि इंटरल्यूड जो है वो लिखने वाले बेसिकली काफी लोग थे। सना साहिबा, जॉन रेस्टल भी थे जिन्होंने इंटरल्यूड लिखा और बड़ा फेमस लिखा था, 4 एलिमेंट्स ऑफ द नेचर। लेकिन ये जॉन हेवुड जो है वो 1497 से 1580 तक एक लंबी जिंदगी स्पेंड की थी इन्होंने। इनके फोकस की बात कर रहा है, ये ह्यूमरस वे के अंदर, सटायर के अंदर चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। हमें ये बताना है कि उनका फोकस कहाँ पे था, अम्यूजमेंट पे था, इंस्ट्रक्शंस पे था? अगर ऐसा है तो क्या था? तो अब इनकी एक थ्योरी है बेसिकली, इसमें ये 4 पीस पे बात करते हैं। 4 पी फॉर पाकिस्तान, ठीक है। ये कहते हैं पार्टनर बनो, ठीक है, पामर बनो, ठीक है, पोथो कैरी बनो, पेडलर बनो। अब इसको यार एक्सप्लेन खुद से कर लीजिएगा बिकॉज द थिंग्स आर क्वाइट इजी
जॉन हेवर्थ की इंटरल्यूड्स क्या है, इनकी थ्योरीज क्या है, इनको खुद से देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, इट्स वेरी इजी बाय द वे। सो हमारे पास जो है, आप सबने रिक्वेस्ट की हुई है कि आप सब अपने मॉक इंटरव्यूज जो है वो नेक्स्ट वीक में देना चाहते हैं। तो अगर कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो आपका अभी हो, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम जो है वो कोशिश करते हैं कि आज यहाँ यहीं पे हम जो है वो रुकेंगे। हम यहीं पे अपनी क्लास को एंड करने की कोशिश करेंगे। कल की जो हम क्लास होगी उसमें हम सिर्फ जो है वो जो हमारे प्लेज हैं, प्लेज में से जो क्वेश्चंस हैं हम उन पे बात करेंगे। एक दिन हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस पे बात किया करेंगे, एक दिन हम प्लेज के क्वेश्चंस पे बात किया करेंगे, ठीक है। हम इस तरह से मूव ऑन करेंगे अपने इन सेशंस के अंदर। तो एक दिन हम हिस्ट्री पे बात करेंगे और एक दिन हम प्लेज पे बात करेंगे। So if you have any question, you may go for that. अगर आपके क्वेश्चन नहीं है, that's all for today. और हम अपने सेशन को यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। हानिया, लिस्ट आपके पास है? वो लिस्ट जो है उसमें से जितने प्लेस के हमने क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं वो नहीं होंगे, और जो उससे अगले क्वेश्चंस हैं हम अब उन पे बात करें, ठीक है। आई एम श्योर द लिस्ट इज अवेलेबल देयर। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो आप बता दीजिए, आपको सेंड कर। चलें जी, इट लुक्स फाइन। ओके, थैंक यू। जी जी जरूर, चलें जी। जी ठीक है सना साहिबा, ऐसे ही एक्सप्लेन करते हैं थोड़े थोड़े, ठीक है। सना, आपका मुझे मैसेज भी मिला था, शायद आपकी कोई कनेक्टिविटी इश्यूज थे, बट आई एम हैप्पी कि यू आर इन द क्लास। आप कोशिश किया करेंगे एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। सो जी, थैंक यू सो मच।